we take the opportunity to have a little revision on what we have spoken earlier, particularly about we want to concentrate on the truth about justification. धार्मिक ठहराए जाने के बारे में है, उसके बारे में हम फिर से मनन करेंगे. So, dear brothers and sisters, this the truth of justification by faith, we could all share what we have understood. We could all take turns. और हम में से हर कोई बांट सकता है जो भी आपको समझ में आया है धार्मिक ठहराए जाने के बारे में. Yeah, go ahead, Brother Cyril. I said this verse from Romans chapter 2, 6 and 7. रोमियो के अध्याय 2 वचन 6 और 7 में हम देखते हैं. As I remember, like Brother George last Sunday spoke about self-seeking. Like these Pharisees were they were mostly like self-seeking people. और जैसा कि हम किसी दिन भाई जॉर्ज को सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि जो फरीसी थे वो स्वार्थी थे और स्वयं की मतलब के लिए मतलब की बातों की खोज में थे. Now, as it says in Romans chapter 2, from 6 to 7, it says, He will render to each one according to his work. To those who by patiently as well doing seek for glory and honor, and immortally he will give eternal life. But for those who are self-seeking and do not obey the truth, but obey unrighteousness, there will be wrath and fury. तो हम पढ़ते रोमियो के अध्याय 2 वचन 6, 7 और 8 में, वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा. जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा. पर जो विवादी और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा. ओके. तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने पौलुस को प्रेरित किया ये रोमन्स चैप्टर लिखने के लिए. So I thank God that God had inspired Apostle Paul to write this book of Romans. और मैं जब भी ये पढ़ता हूँ इस रोमन्स किताब को, मेरे लिए एकदम फ्रेश लगता है. And whenever I read this book of Romans, it is always fresh. It is always fresh for me. और इसमें हम जब पढ़ेंगे तो एकदम गॉस्पेल एकदम सिंपल हमको समझ में आता है. And when we read it, we can understand the gospel in a very simple manner. और जो ये चैप्टर मेरे लाइफ के अंदर बहुत इम्पैक्ट किया. And this chapter has impacted my life in a very great manner. और मैं देखता हूँ कि मैं अभी ये टीचिंग जब ये बाइबल स्टडी चल रहा था तो उसमें रोमन्स चैप्टर 2 में लिखा है कि ये दोष लगाने वाले तो कोई क्यों ना हो तो निरंतर है, क्योंकि जिस बात में तो दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है. इसलिए तू जो दोष लगाता है आप भी वही काम करता है. Sister, Romans chapter 2 verse 1. So as I was meditating upon this Romans chapter 2 and verse 1, so it is mentioned there that therefore you who are without excuse, every man of you who passes judgment, for in that you judge another, you condemn yourself. For you who judge practice the same things. You know, ये वचन में लिखा है कि ये दोष लगाने वालों, और हम देखते हैं कि हमारे अंदर एक ऐसा नेचर है कि हम एक दोष लगाने का हमारे अंदर एटीट्यूड देखते हैं. So here it is mentioned that you who pass judgment, and when we see ourselves, we also see that we have an attitude that where we condemn others. और देखिए इस चैप्टर में पूरा लिखा है, अगर हम पढ़ेंगे तुम अन्य जाति लोग भी दोष लगाते और
अगर हम मसीह भाई बोलते हैं, मसीह लोग भी एक क्रिश्चियन भाई भी दोष लगा रहे हैं दूसरे को. And when we read further in this chapter, we see that the Gentiles also, they judge others, and the brothers in Christ also, they judge others. हम देखते हैं कि पौलुस वही बता रहे हैं कि जिस बात पर तो दूसरे पर एक विश्वासी भाई दोष लगा रहे, उसी बात के लिए भी तू भी दोषी ठहराया है. And it is mentioned that a Christian brother, the thing in which you judge other, the same thing you are doing yourself also. तो आगे वो इतना खूबसूरती से बता रहे हैं कि हम सभी लोग, एक अन्य जाति और एक विश्वासी लोग या विश्वासी लोग, सभी लोग दोषी ठहराया गया है, मतलब सभी लोग को कंडेम परमेश्वर ने ठहराया है. And later it is mentioned very beautifully, and it is explained in a very beautiful manner that all of us, whether we are Gentiles or whether we are Jews, all have been, सब पे दोष लगाया गया है brother. जी जी. All have been judged. तो हम देखते हैं कि लेकिन वहां पर बता रहा है कि जिस तरह परमेश्वर जो लाइफ परमेश्वर चाहता है कि जिस तरह लाइफ यीशु मसीह के जैसा लाइफ जीने के लिए, वो इंसान अपने आप से नहीं कर सकता, बट लेकिन एक प्रोविजन हमको दिया है, सिर्फ हम यीशु पर विश्वास करने से हम धर्मी ठहराते हैं, परमेश्वर नहीं ठहराए. So we see that in this chapter that we cannot live the Christian life on our own strength and on our own strength, but we can do it only if we have faith in Jesus Christ. मैं देखता हूँ कि अगर अन्य जाति लोग अगर कुछ सिन करते हैं, हमको पता है, बट लेकिन वही चीज अगर मैं कर रहा हूँ तो उसमें और मुझ में क्या फर्क है. And we see that Gentiles, they sin that we can understand, but if I do certain sin, then what is the difference between them and me? तो यहाँ पर पौलुस आगे वही बता रहा है कि हम सभी मनुष्य पाप के गुलाम के अंदर है. And here Paul is telling us that we all of us are under the bondage of sin. कोई भी एक व्यवस्था के द्वारा कोई भी आदमी धर्मी नहीं ठहरा सकता. And nobody will be can be judged as righteous on the basis of the law. लेकिन सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहराता है. But only and only if we believe in Jesus Christ, and through our faith we can be justified. तो ये चीज मुझे एकदम क्लियरली मुझे समझ में आ रहा है और मैं जो टीचिंग में सीख रहा हूँ. And this thing I am more clearly I am able to understand and I am able to learn. और परमेश्वर ने हमको धर्मी ठहराया है, और उसके बाद सिर्फ हमको पाप माफ नहीं किया, बट हमको परमेश्वर ने जीसस का लाइफ हमको दिया है. So Jesus has not only justified us, but also he has not only forgiven our sins and justified us, but also has given a life, his life to us. हमको धार्मिकता गिना जाना, इसका मतलब मैं इस तरह सोच रहा था कि फॉर एग्जांपल मेरे पास, मैं एकदम गरीब हूँ, मेरे पास कुछ पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, और समझो एक व्यक्ति ने मुझे मेरे अकाउंट में $1 मिलियन डाल दिया और मैं क्या हो गया, मैं एक रिच हो गया. So to be justified in front of God, I was taking it as like, in the form of an example, that suppose I am very poor and and one person, he has deposited some 1 million rupees in my account. तो मैं सबसे ज्यादा अमीर हो गया, मैं या मेरे लिए. Then I become very rich and extremely rich. तो मैं ऐसा जीवन, ये मतलब मैंने देखा कि परमेश्वर के अंदर ये अनुभव करने में मुझे मिला. मैं प्रभु के इस चीज के लिए धन्यवाद करता हूँ. And I really thank the Lord that I have received such life from Him. दूसरे पर दोष लगाने से बेहतर है कि प्रभु मेरे अंदर
मेरे अंदर क्या फॉल्ट है, मेरे अंदर क्या कमी है, मुझे बताओ. Before I judge others, I should ask Lord that Lord, what is the shortcoming in me and what I do lack? Please tell me. मैं इस चीज के अंदर मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही आनंदित हूँ कि जब परमेश्वर हमको जस्टिफाई करता है. सोचो एक गुनहगार है, मर्डरर और अलग अलग टाइप का उसने क्राइम किया है, बट वहां पर वो व्यक्ति निर्दोष निर्दोष कोर्ट से बाहर निकल रहा है. कितना खुशी की बात है. उसका मन का आनंद कितना, उसको सर उठाकर चलता रहेगा. अरे मैं तो जस्टिफिकेशन हो गया, मुझे कोई दोष नहीं लगा, मैं तो निर्दोष हूँ. So, if a person is guilty of some sin, and then that guilt is lifted and the sin is forgiven, then it is such a good thing for him, and he can walk up uprightly and with pride that now his sins are forgiven. और परमेश्वर ऐसे जीवन हमको देने आया, हमको सर झुकाना नहीं, हमको सर उठाकर, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमने कोई अच्छा काम किया, बट इसलिए जीसस ने मेरे लिए काम किया है क्रूस पर. So Lord wants to give us such life in which we do not have to bow down our head, but we have to lift our head and walk in such a manner, and that because Jesus has given because he has given such life to us. इसलिए आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस. That's why I have decided to follow Jesus. ये वंडरफुल गॉस्पेल के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ. I really thank the Lord for this wonderful gospel. एक्चुअली एप्रिसिएशन का इतना वर्ड नहीं है, बट मेरा हार्ट का जो कंडीशन है परमेश्वर को पता है कि प्रभु मैं कितना खुश हूँ, कितना आनंदित हूँ. आई होप कि सभी जन ये चीज अनुभव करेगा. I really do not have enough word to appreciate it and to express my gratitude, but I am so thankful, and God knows that, and that God has given such life to me. Amen. Amen. I spoke about self-seeking, and the Bible speaks also. You know, these people, these Pharisees, were the one who knew the truth. They knew the word of God. They were sitting on the seat of Moses. They were teaching the word, but they were not practicing, but they were doing the things that was seeking for themselves. और जैसा कि हम सभी सुन रहे थे और हम वहाँ पर वचन में देख रहे थे कि जो फरीसी थे वे स्वार्थ की खोज में थे, और उन्हें सारे सत्य की बातें और जो वचन और व्यवस्था थे वो उनके पास थी, और वचन कहता है कि वो मूसा की गद्दी पर बैठे हैं. And they were trying to seek things only for themselves. और वो केवल खुद के लाभ के लिए ही बातों को खोजते थे. But for us that who are in Christ, the word for us is tells us to seek the kingdom of God first. लेकिन हमारे लिए जो शब्द परमेश्वर की ओर से आया है, जिसकी हमें खोज करनी है, वही है कि सबसे पहले हमें परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करनी है. And we need to seek it with truth and in spirit. और हमें उसकी जो खोज है वह आत्मा से और सच्चाई से करनी है. Because the day we stand in front of the Lord, that we should not be shameful for the things we have done or said. कि जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, उपस्थित होंगे, तो हमें पछतावा ना होने पाए किसी भी बात का, जो बातें हमने सोची और जो बातें हमने कही हैं. Because as it says, the second coming is going to come to judge only for the things that we have done and what we have said. क्योंकि जो मसीह का दूसरा आगमन होगा वह इसी कारण के लिए होगा कि जो भी बातें हमने बोली हैं और जो बातें हमने की हैं उसका वह न्याय करें. Yeah, I want to ask one question, so you can volunteer to share. What are the types of righteousness mentioned in the scriptures, and which kind of righteousness is acceptable to God? Any volunteers to answer and explain the answer? परमेश्वर की धार्मिकता. We discussed this in previous chapters.
So types Karunakar, of can I righteousness and try to explain? which type of righteousness is accepted? Yeah, Brother Karunakar, can I answer? Yes, Brother Neeraj. Yeah, with respect to the question what Brother Karunakar said, actually same thing I wanted to share what God spoke to me during this meetings of the teaching session from Romans. और जैसे कि भाई, should I translate brother? Yeah, please brother, translate. और भाई करुणाकर ने एक प्रश्न पूछा है कि किस प्रकार की धार्मिकता परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य है, और जिसके विषय में हमने पिछले सप्ताह ही अध्ययन के दौरान हमने देखा 2 प्रकार की धार्मिकता, और इस पर विस्तार से समझाने के विषय में उन्होंने प्रश्न पूछा और भाई नीरज उसका जवाब दे रहे हैं. So I really was encouraged to listen to the right about the righteousness, which Brother Matthew has correctly explained, that there are 3 righteousness that what he shared about. और मैंने जब धार्मिकता के विषय में वचन के अध्ययन के दौरान सुना तो वो मैं बहुत ही उससे खुश, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और भाई मैथ्यू ने बताया 3 प्रकार की धार्मिकता के विषय में. First is the righteousness of God, and the second one is the righteousness meaning what as according to the law, and the third is what we understand or how we interpret it, what is righteousness. That could be like righteousness of men or how we explain as righteousness. और यहाँ पर 3 प्रकार की धार्मिकता ऐसे है कि पहली धार्मिकता जो परमेश्वर की है, और जो दूसरी धार्मिकता होती है वह व्यवस्था के अनुसार जो होती है वह धार्मिकता, और तीसरी धार्मिकता वह होती है जो मनुष्य है, जो इंसान है, जो इस धार्मिकता को किस मायने में लेते हैं और इसका कैसा मतलब निकालते हैं, और हम जो समझकर जो इसका अर्थ लगाते हैं वह ऐसा कह सकते हैं कि मनुष्य की धार्मिकता. So as it is written in Romans chapter 4 verse 3, as it says, Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. और हम रोमियो 4:3 में पढ़ते हैं, जैसे लिखा है कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया. So that righteousness of God was credited to him. That is a wonderful truth. And similarly, in our own understanding, it's very difficult. It's a profound mystery, as if one we can understand from the law, which was given afterwards. But before the law was given, it was already credited to Abraham as righteousness, which is a mystery to understand, which is only revealed in Jesus Christ. और हम जो यहाँ पर परमेश्वर की धार्मिकता के विषय में देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने स्वयं की धार्मिकता को अब्राहम को दे दिया और अब्राहम को धर्मी ठहराया. और हम ये जो धार्मिकता के विषय में पढ़ते हैं और सुनते हैं, यह अपने आप में इतना बड़ा विशाल विषय है कि हम इसे समझ नहीं सकते पूरी तरह से. लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा और यीशु मसीह है, वही केवल हम पर इस बात को प्रकट कर सकते हैं. So similarly, if we believe in Jesus Christ, so God's righteousness, we are justified through faith, because we are putting our trust and faith in Jesus, who can only justify us through, because He is righteous. He died on that cross for our sins, and God, it's as it is written, it's like a propitiation, that's like He died for us. He was like a person, mediator, who no one else could fulfill that requirement of righteousness, but only Jesus Christ fulfilled it. He died on that cross, and because of that we can come before our Father, Lord. और जैसा कि हम वचन में पढ़ते हैं कि जो परमेश्वर की धार्मिकता है वह हमें केवल यीशु मसीह ही धर्मी ठहरा सकते हैं, और यीशु मसीह ने हमारे लिए हमारे पापों के लिए अपने प्राण को दिए हैं. और जैसे कि हम बलि के विषय में पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने हमारे पापों के बदले अपने आप को बलिदान किया और हमारे लिए कीमत चुकाई उन्होंने उनके प्राणों को देकर. तो केवल उसी माध्यम के द्वारा परमेश्वर हमें यीशु मसीह पर विश्वास करने द्वारा धर्मी ठहराते हैं. So that's what I want to share, Brother Karunakar. Thank you. Yeah, very good, brother. Thank you. Yeah, I used to have a question in my mind because I heard about Christ even when I was a child. और मेरे मन में हमेशा एक प्रश्न उठता रहता था, और मैंने मसीह यीशु के बारे में जब मैं छोटा था तब भी मैंने उसके विषय में सुना था.
Yeah, because I attended few church meetings also where I used to hear that only those who believe in Jesus would go to hell. और मैंने यहाँ तक कलीसिया में यह भी संदेश सुना था उन दिनों में कि ऐसे प्रचार होता था कि जो केवल यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं केवल वे ही स्वर्ग में लिए जाएंगे। So then there was a question: what about the people that who have not heard about Jesus Christ or who was born before Christ? और मैं इस विषय में विचार करता और सोचता कि क्या होगा उन लोगों का जिन्हें यीशु मसीह के विषय में पता नहीं, या वे लोग जो यीशु मसीह के आने से पहले ही आकर जा चुके, गुजर चुके हैं, उनका क्या होगा? So we can read about that in chapter 1. So God basically gave conscience to everyone. तो हम उसके विषय में पहले अध्याय में पढ़ते हैं और हम आगे वचन में देखते हैं कि परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को एक विवेक दिया है, मन दिया है। And his attributes are revealed in the nature around us. और जो परमेश्वर के जो गुण और जो स्वभाव होते हैं वह उसकी बनाई हुई सृष्टि की रचना के प्रकृति में दिखाई पड़ती है। So God was actually judging, based on our conscience for the people, those who lived before Christ. और वे लोग जो यीशु मसीह के आने से पहले जीवन बिताकर गुजर चुके हैं, उनके मन के और जो उनके विवेक के द्वारा जो उन्होंने किया, उस आधार पर परमेश्वर उनका न्याय करेगा। And what I understand is then everybody was sinning. Nobody could keep their conscience clear. So everybody at some point of time went against their conscience and committed sin. तो हर एक व्यक्ति का जो मन है, जो विवेक है, वह उसे कुछ भी गलत करने के विषय में टोकता है, और जो व्यक्ति उस मन के आवाज को नहीं सुनता, आगे बढ़कर वह जो करता है वो पाप हो जाता है। So then God gave a law to Israelites, showing that what is sin and what is righteousness. और तब परमेश्वर ने इस्राएलियों को अपनी व्यवस्था और वाचा दी और आज्ञाएं दी कि आज्ञा का उल्लंघन और पाप करना क्या है। So the law only gives, the law helps to understand about sin. It only gives the knowledge about sin. तो जो पाप है वह केवल हमें, जो व्यवस्था है वह केवल हमें पाप के विषय में ज्ञान देता है कि पाप क्या है। So there was set of commandments to do this and not to do this. और ऐसी कुछ आज्ञा हैं जिसमें हमें कहा जाता है कि क्या तुम्हें करना है और क्या तुम्हें नहीं करना है। So but when we know like how Israelites have failed, they could not keep those commandments. लेकिन हम देखते हैं कि इजरायली जो थे वो पूरी तरह से असफल हो जाते हैं और वह परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर पाते। So they were judged by the law itself. तो उनका जो न्याय है वो व्यवस्था के आधार पर होगा। And that's why Paul says instead of bringing life, it actually brought death. और इसलिए पौलुस कहते हैं कि वह जीवन लाने के बदले वह मृत्यु लेकर आती है। But thank God, we must be, we should always thank God that God not only gave forgiveness of our sins, but he also gave an opportunity to overcome sin. लेकिन हम हमेशा परमेश्वर का नित्य धन्यवाद करते रहे और धन्यवादी रहे कि परमेश्वर ने ऐसा प्रयोजन किया कि न केवल हमें पापों की क्षमा मिले परंतु हम उसके सामर्थ्य से भी छूट सके। Because the law could not help them to overcome sin. और ये जो व्यवस्था थी यह उनकी सहायता नहीं कर सकता था पाप के ऊपर जय पाने के लिए। But today, by God's grace, we have the Holy Spirit who can help us to overcome sin. लेकिन आज हमारे पास परमेश्वर का पवित्र आत्मा है जो हमारी सहायता कर सकता है पाप के ऊपर जय पाने में। So all we need to do is to believe in God's promises. इसलिए हमें केवल आवश्यकता है परमेश्वर के जो वायदे हैं और जो उसकी प्रतिज्ञाएं उस पर विश्वास करने के लिए। Yeah, so that's right. So we are not treated righteous by our own deeds, because our righteous deeds are like filthy rags in God's sight. क्योंकि हम अपने कामों के द्वारा परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी नहीं ठहर सकते, क्योंकि हमारे जो काम है वो परमेश्वर के सामने मैले वस्त्र, मैले कपड़ों के समान है। So we are accepted by God only by our faith in His Son, Lord Jesus Christ. तो हम केवल इसलिए बचाए गए परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरते हैं कि वह विश्वास जो हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर करते हैं। Yeah, so Jesus Christ came
to forgive us from our past sins and also to save us from our sins. इसलिए यीशु मसीह आए कि हमें हमारे भूतकाल के जो किए गए पाप है उन पापों से हमें पापों की हमें माफी दे और हमारे वर्तमान समय के जो पाप है उससे हमें बचाए. So this is the wonderful truth, and only the Bible teaches this, and no other scripture, no other religions explains this truth. और यह जो अद्भुत वास्तविक सत्य है परमेश्वर का, यह केवल परमेश्वर के वचन बाइबल में ही पाया जाता है. हम संसार के किसी भी अन्य धर्म ग्रंथ में देखें वहां पर हमें यह सत्य नहीं मिलता. That's why only Jesus could say, "I am the way, the truth, and the life." इसलिए कि यीशु मसीह ने जो कहा है कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ. Aligns to what Karunagar just shared. और जो भाई करुणाकर ने बांटा है उसमें मैं एक दो पंक्तियां जोड़ना चाहता हूँ. See, what we learned in this Romans so far is that Christ has come to forgive our sins and also give us power to overcome sin in the future. और हमने अब तक रोमियो के जो 4 अध्याय में अध्ययन किया, हमने वहां पर ये मुख्य बातों को सीखा है कि यीशु मसीह इसलिए आए कि हमारे पापों को क्षमा करे और उस पाप के ऊपर जय पाने के लिए हमें सामर्थ्य दे. So this is not at all by anything we do, that is works. और हम जो कुछ भी कर लेंगे पाप पर जय पाने के लिए, वह सारे काम इसके लिए काम नहीं आएंगे. It is by faith in Jesus Christ. यह केवल यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा होगा. In his ability to do it. कि उसकी क्षमता में कि वह यह काम कर सकते हैं. I was always thinking, if righteousness were by works, we will never be sure about our salvation. मैं इस बात पर विचार करता कि यदि धार्मिकता कामों के द्वारा होती तो हम कभी भी हमारे उद्धार को लेकर हमें आश्वासन नहीं होता. So we can never be sure about our works. We can never rely on our works for salvation, because if righteousness is by our works, we can never be sure about salvation. और हमारे काम जो है उसके प्रति हमें कोई निश्चय आश्वासन नहीं रहता है, तो इसलिए हम हमारे काम पर निर्भर नहीं हो सकते कि इसके द्वारा हम धर्मी ठहराए जाएंगे, हमारा उद्धार होगा. See, when you speak to our Muslim friends, they is a fully a religion of salvation by works. You can always say that salvation is never assured for them. They are not sure. It will be only assured when you actually go there. और हम जैसे हमारे मुस्लिम भाइयों से या किसी से आप मुस्लिम पंथ के व्यक्ति से मिले तो आप देखेंगे कि वे ऐसे लोग होते हैं जो पूरी तरह से अपने कामों के द्वारा धर्मी ठहराने, उद्धार पाने के लिए प्रयत्न करने वाले लोग होते हैं, और उन्हें उनके कामों पर आश्वासन नहीं रहता. वह ऐसा कहते हैं कि आप पूरी तरह से उद्धार तब ही पाएंगे जब आप स्वर्ग पहुंचेंगे. So for us, we can be sure, because it is nothing to do with me. It is all my trust in Him who is able. लेकिन जब हम हमारे विषय में बात करते हैं तब यह हमारे लिए पूरी तरह से हमें दृढ़ निश्चय हो सकता है, आश्वासन रहेगा हमारे उद्धार के विषय में, क्योंकि हम नहीं है जो वह कार्य को करते, परंतु वह विश्वास जो परमेश्वर है कि परमेश्वर यह कर सकते हैं. If I want salvation and I trust in Jesus Christ, He will do He will do it for me. That is the glory of this gospel. और इस सुसमाचार की यही महिमा है कि मैं परमेश्वर के पास आकर परमेश्वर में विश्वास रखता हूँ, यीशु मसीह में, कि वह मेरे लिए इस कार्य को करेंगे, उसके प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करके, तो वह महिमा सुसमाचार की मैं देखूंगा. As it is said in Philippians that he who has started a good work in us will complete it. और जैसा कि हम फिलिपियों के पत्री में भी पढ़ते उस वचन को कि वह जिसने तुम्हारे अंदर भले काम शुरू किए उसे वह पूरा करेगा. So when I was a small boy, I was in a church where they used to speak a lot about living a good life. और मैं जब छोटा था तब मैं जिस कलीसिया में था वहां पर इस बात पर बहुत अधिक प्रचार होता था कि एक अच्छा जीवन बिताएं. Every preacher will come on every meeting and say that don't lie, don't cheat, don't do this, don't do that. They keep on telling all this. और हर एक जो प्रचारक वहां पर आता था वह इसी बात का प्रचार करता कि तुम किसी को धोखा न दो, कपट न करो, या किसी से झूठ मत कहो, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो. Meeting, I will sit in the meeting and get so much afraid of all this and afraid of hell, and I take a decision that I will not do all this. और मैं वहां पर इन सारी बातों को सुनता था तो मैं डर जाता था भय के कारण, और मैं ऐसे सोचता कि मैं नरक नहीं जाना चाहता और इसीलिए मैं इन सारी बातों को नहीं करूंगा. And I will get up and confess my decision also.
अब मैं वहां पर खड़े होकर अपने उस निर्णय को भी मैं वहां पर अंगीकार करता, But my decision goes only not even for a day. लेकिन मेरा जो निर्णय होता जिसका मैं अंगीकार करता वह एक दिन के लिए भी नहीं टिकता, Because I never understood the gospel, which has got the power to deliver me. क्योंकि मैंने उस सुसमाचार के अर्थ को नहीं समझा जिसमें यह सामर्थ्य है कि मुझे उससे छुड़ा सके। So what a great privilege God has given us to understand the power of the gospel, which can deliver us from sins. लेकिन परमेश्वर ने कैसा हमें बड़ा सौभाग्य और सुअवसर दिया है कि हम समझ पाए परमेश्वर के सुसमाचार की सामर्थ को, जिसमें सामर्थ्य हमें छुड़ाने के लिए, Which is believing in Christ's sacrifice on the cross and the resurrection for our justification and trusting in Him to make us lead a life without sin. कि यीशु मसीह के उस बलिदान में जो उन्होंने हमारे लिए हमारे पापों के लिए किया उस पर विश्वास करना और यीशु मसीह के पुनरुत्थान और उसके जी उठने के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं, इस बात पर विश्वास करना जिससे हमारा जीवन जो है सुसमाचार के उस सत्य से छूटता है। Only Christ can make us like Him. So that is why we have to trust in Christ for that. Amen. और केवल यीशु मसीह है जो हमारे जीवन को छुड़ा सकते हैं और उसी में हमें भरपूरी से विश्वास करने की जरूरत है। आमीन। I would like to just what was coming to my mind when it was said that we'll have a revision of whatever was what we studied the past week was the verse, the just shall live by faith. तो जब यह बताया गया कि अभी हम उन बातों को दोहराएंगे जो हमने अभी तक रोमियो की पुस्तक में पढ़ा है, तो मेरे मन में वह वचन आया जो हमने पिछले सप्ताह में पढ़ा था कि जो धर्मी है वह अपने विश्वास से जीवित रहेगा। Yeah, just like we heard that we can never attain to God's righteousness with all our works. How much ever we try, we cannot attain. And I had listened to a Muslim brother from Iran who was trying so hard to please God, but he was not successful at all. तो जैसे कि हम समझते हैं कि परमेश्वर की जो धार्मिकता है उतना उस स्तर तक पहुंचना बिल्कुल नामुमकिन है अगर हम अपने कामों के द्वारा उस तक पहुंचना चाहें। और एक मैं भाई के विषय में जानती हूं जो मुस्लिम है और वे ईरान से हैं, तो उन्होंने इतना जतन किया, इतना कोशिश किया कि वे अपने कामों के द्वारा परमेश्वर को खुश करें। And he joined a terrorist organization thinking that by killing all the unbelievers and fighting for his religion he would please God. तो उन्होंने एक आतंकवादी संग्रह में भी वे जुड़ गए, ये सोचते हुए कि अपने जो दूसरे जाति के जो धर्म के जो लोग हैं उनको मार कर वे परमेश्वर को प्रसन्न कर पाएंगे। So he was doing all this, and in spite of that, he was so unhappy, and he had no joy. He never knew whether his God was satisfied with him. And then he says that how after a long time, because of all these activities, he was put in prison, and there how he was seeking God, and then he comes to know Jesus. He sees Jesus in a dream. तो ये सब काम करते हुए वह कितना अंदर से प्रसन्न नहीं था और वो जो आनंद है वह उसकी कमी महसूस करता था। और ऐसा करते हुए एक बार उसको जेल में भी डाला गया और वहाँ पर वह इतना निराश था, तभी उसको, और वह परमेश्वर की खोज में था, तभी उसको स्वप्न में एक परमेश्वर ने एक सपना दिखाया। And he happened to see Jesus, and he felt so accepted by Jesus that even when he was sharing his testimony, he burst out into tears and he was saying, you don't know what I was going through. I was trying so hard to please God, and I was not able to please him, but I found that Jesus was accepting me, just
He loved me so much. I could feel His love in my heart. और जब वह यीशु मसीह को अपने सपने में देख रहा था, तब उसमें अपने आप को यीशु मसीह के द्वारा इतना अच्छे रीति से अपनाया जाया हुआ महसूस किया, अपनाए जाना महसूस किया कि वह बताते हुए भी रो रहा था अपनी गवाही को कि कैसे वह पूरी कोशिश कर रहा था परमेश्वर को खुश करने की, और लेकिन जब वह यीशु मसीह से मिला तब वह जान पाया कि परमेश्वर ने उसको जैसा वह है वैसा ही अपनाया है. Yeah, so I was just thinking how wonderful it is for us to know a God who accepts us just as we are, who cleanses us from our sins, and just by faith in Him, He clothes us with righteousness. Just by faith, all that we need is to believe in the work that Jesus has done, and we are accepted. And then, this verse which in Romans 5 and verse 9, which we heard last week, which says, as much more then, having now been justified by His blood, we shall be saved from the wrath of God through Him. तो यह कितनी अद्भुत बात है कि हम ऐसे परमेश्वर को हम जानते हैं जो हमें जैसे हम हैं वैसे ही हमें अपनाते हैं, और हमें सिर्फ उनके ऊपर विश्वास करना है. उनके लहू के द्वारा उन्होंने हमें हमारे पापों से छुड़ाया है, और वे हमसे कितना प्रेम करते हैं. और जैसे कि रोमियो के 5वें अध्याय के 9वें वचन में लिखा है, सो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों न बचेंगे. Yeah, so the hope that I have is that like this verse which is saying that we shall be saved. Shall be is something in the future. We shall be saved, and it's a surety. We shall be saved from the wrath of God through Him. We are going to be saved even in the future. I'm going to be saved, I believe, through Jesus Christ. That's the hope that I have. तो जो आशा मेरे लिए है वह यह है कि मैं उसके क्रोध से बचूंगी. तो यह एक भविष्य में होने वाला एक बात है, क्योंकि वहाँ पर लिखा है कि हम उसके क्रोध से क्यों न बचेंगे. तो यह मेरे लिए एक बहुत ही अद्भुत बात है, और मेरे लिए एक बहुत बड़ी आशा है कि मैं परमेश्वर के क्रोध से उसके लहू के कारण धर्मी ठहरूंगी और उसके द्वारा क्रोध से बचूंगी. Yeah, praise God for that. और मैं परमेश्वर की स्तुति करती हूँ इस बात के लिए. हाँ जी, मुझे जैसा कि रोमन्स का पहला से जैसा सुन रहे ना, तो मुझे एकदम अच्छा लगा. बीच में मैंने 2-3 क्लास मिस किया. मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है. मैं रुकूं? हाँ, या सिस्टर, मैं ट्रांसलेट करती हूँ. तो जैसे कि as we were hearing from the book of Romans, I was very much happy and I could learn so many things, although I missed 2 or 3 classes. मुझे मैंने देखा है, जब मैं क्लास खत्म होने के बाद बाकी के दिन के टाइम पे मैंने कभी देखा है, तो उसमें ऐसा ज्यादा करके हमने सीखा है, मतलब उन्नति के बारे में और जोशी लगाने के बारे में, धर्मशास्त्र के अनुसार चलने के बारे में, है ना. So whatever I could attend, we were hearing regarding progressing in our life, Christian life, and regarding judging others and pointing others. Yeah. तो सारे बातों को हम मसीह होने के नाते ज्यादा हमारा ध्यान उसी पे जाता है. जब मैं 5वें दयास्था के वचन सुन रही थी, तो मुझे उत्साहित हुआ था, ये उत्साहित हुआ ताकि हम परमेश्वर, हम कमजोर थे और भक्तिहीन थे और हम सबसे पहले उसका शत्रु थे. इतना सारा हमारा अंदर लोग होने के बावजूद भी. So when we reached at chapter 5 of Romans, then when I was hearing that initially we were
enemies of God, and we were without any religion, or we were not good people. और बलहीन थे, कमजोरी थे, तो बहुत सारे हमारे अंदर ये थे, तब भी यीशु ने हमसे इतना प्रेम किया है. And we were very weak, and there were so many problems in us, but still God had loved us so much. और प्रेम किया और हमको निर्दोष ठहराया, जैसा कि अभी अनिला सिस्टर ने 9वां वचन का वो शेयर किया है. मतलब उन्होंने हमको धार्मिक ठहरा दिया है, उनका धार्मिकता हमें दे दिया गया. So now we have been made righteous with God, and God has clothed us, as Sister Anila was sharing from verse 9, that now God has clothed us with His righteousness. ताकि हम उनकी आने वाला जो क्रोध है उससे भी हम बचे, ना ही हम इस संसार की बातों से या तकलीफों से, बल्कि आने वाली बातों से भी हमको बचाने के लिए उनकी धार्मिकता. और जैसा कि मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूँ. एक छोटा बच्चा अपना पापा का हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करता है, तो उसको कोई चिंता नहीं रहता है यहाँ से क्या आ रहा है, वहां से कौन सा गाड़ी आ रहा है, यहाँ से कौन सा गाड़ी आ रहा है. वो अपना पिता का हाथ पकड़ा है तो वो बिंदास वो रोड क्रॉस कर देगा. So in that verse it is mentioned that God will save us from the wrath of God in the times to come, in future also. So it is not from the present world, but even from the future also. In the future also He will do it, and He will save us through His blood. So I want to give an example here, that when a child crosses a road and he is holding his father's hand, that time he is not worrying regarding the vehicles, whether they are coming from here or whether they are coming from there, because he is holding his father's hand. तो मुझे ऐसा लगा इस संसार में ये न्याय, ये सारे बातों के ऊपर हम ध्यान देके हम परमेश्वर के हाथ छोड़कर हम खुद चलना चाहते हैं, तो हमको ये सारे प्रॉब्लम्स देखना पड़ता है. लेकिन मुझे ऐसा लगा है, मैं मेरा प्रभु का हाथ पकड़ लिया है, तो क्या है, और कुछ है, मुझे वो जहाँ है वहाँ लेके जाएगा एक दिन. So in this world, we are sometimes, what we are doing is we are leaving the hand of our Father, and we are trying to walk in our own strength, and that's why we sometimes get we get out of we live our life on ourselves, but we do not have to do it. We just have to hold our Father's hand, and He will take us where He wants us to go. तो मुझे ये बात बहुत ये छुआ है. मतलब क्या नाम, ऐसा नहीं है ये इसके विरोध में हम धार्मिक होने के लिए मेहनत नहीं करना चाहिए, क्योंकि यीशु भी शरीर में है तो उसने भी संघर्ष किया है शारीरिक लालसाओं के लिए, संसारिक बातों के लिए. तो हमें वो सामर्थ्य दे रहे हर वक्त ना, उनकी पवित्र आत्मा हमें दिया गया है. तो हमको वो जब तकलीफ से जाता है तो उसकी सामर्थ हमारा अंदर आएगा के लिए. तो मुझे ये वचन बहुत छुआ है, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ तभी यीशु को भी और सभी को. थैंक यू. So we also it's not like that we do not have to work hard and we should not do anything. It's not like that. It's like, as Jesus was also in his flesh, he struggled, and he also disciplined his body and other things. So we also have to do it in our body, but still we do not have to do it on our strength, because God is giving that His strength to us. So I really want to thank the Lord for helping me to learn this, and to the church also I want to thank. Brothers Karunakar, can I ask one or two questions? Yeah, sure, brother. Just for the understanding, when does the justification take place in our walk with the Lord?
Vipul, can you translate it? We are speaking about justification. So when does the justification take place in our life? Is it which period of our Christian walk? और जैसा कि हम धार्मिक ठहराए जाने के विषय में चर्चा कर रहे हैं और बात कर रहे हैं, तो मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि हमारे जीवन का वह कौन सा स्तर है, कौन सा भाग है, कौन सा समय है जहाँ पर हमें मसीह जीवन में हम धर्मी ठहराए जाते हैं, वह बात पूरी होती है। वह जो धर्मी ठहराना है वह कब है, हमारे जीवन के किस क्षेत्र में, किस भाग में वह काम पूरा होता है? Anybody can say with a verse, the scripture backing? Vipul? Anybody can say with a scripture backing? और कोई भी जो इस प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं वो अपने उत्तर को वचन के आधार पर बताकर वचन का सहारा दे। Brother, can I? Sure. Everybody. Yeah. If I read from Romans chapter 1:18, justification is the presenting as a solution for God's wrath. What is that? 1:18. Romans 1:18. Okay, read it, brother. Read it. Yeah. 1 minute, huh? Okay, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth and unrighteousness. Yeah. So what are you saying, brother? Verse 1:18. Okay. Yeah, anybody else? Anybody else want to answer that? When does justification, which period of our life does it take place? Romans 3:26. 3:26. For demonstration, I say, of his righteousness at the present time, that he might be just and justified of the one who has faith in Christ. Which period of our life? We have faith in Jesus. When? We have faith in Jesus. Can I, brother? Yes. Yeah. We could tell. Romans chapter 3 verse from 24 onwards, if we read from 23 onwards, if we read, it says that इसलिए सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, उसके अनुग्रह के छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहरा जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, जो पाप पहले किए गए, जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया। ये वो वचन है ब्रदर, वचन 25 का दूसरा पार्ट। जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उसके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। कि हम जब मसीह यीशु के पास आते हैं और हम स्वीकार करते हैं और हमें एक्नॉलेज होता है कि हाँ, मैं एक पापी हूँ और मुझे परमेश्वर की आवश्यकता है, और जब मैं अपने आप के उस पापों को परमेश्वर के सामने मानता हूँ और मन फिराता हूँ, तब परमेश्वर मुझे पाप की क्षमा भी करते हैं और उस समय परमेश्वर मुझे धर्मी ठहराते हैं। और धर्मी ठहरा जाना मतलब परमेश्वर, मैंने बहुत से पाप पहले किए हैं, यहाँ पर लिखा है सहनशीलता के कारण परमेश्वर ने ध्यान नहीं दिया। उन पापों को जब मैं परमेश्वर सामने आके स्वीकारता हूँ, परमेश्वर मुझे ऐसे देखते हैं कि मैंने पहले कुछ नहीं किया है, मतलब जीरो, मैंने मतलब पाप ही नहीं किया, ऐसे परमेश्वर देखते हैं उसके बाद से। तो वह समय होता है जब हम परमेश्वर के पास आते हैं। Absolutely, you're absolutely right. So justification takes place the time we put our faith in Christ. I would like to read a scripture for that. Romans chapter 4, verse 23 and 24. Romans chapter 4, verse 23 and 24. Now, not for our sake only was it written that it was reckoned to him, but for our sake also, to whom it will be reckoned as those who believe in him who raised Jesus our Lord from the dead.
Okay, and he who was delivered up because of transgression was raised because of our justification. If we believe that Jesus was raised, he was delivered for our transgressions and he was raised, that's the time. And we believe that, that's the time and we are justified. So it's in the beginning of our Christian walk. Yeah, Vipul? और मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, रोमियो अध्याय 4 के वचन 23 से आगे की ओर, कि यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, न केवल उसी के लिए वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुए में से जिलाया, और वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। तो जब हम यीशु मसीह के पास आकर इस बात को स्वीकार करके विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह की मृत्यु मेरे लिए थी, उसका बलिदान मेरे प्रति था, तब यदि मैं इस बात को ग्रहण करके विश्वास करता हूं तो साथ में कि यीशु मसीह मेरे लिए जिलाया भी गया, तब वह मुझे धर्मी ठहराता है। और यह जो बात है वह हमारे मसीह जीवन की शुरुआत के स्तर में पूरा होता है। One more question only, and that is, can sanctification take place without us having the truth of justification, without knowing the truth of justification, or not really impacted by that? Can the sanctification work take place in our life? और एक और मैं प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ कि पवित्रीकरण जो होता है, क्या हम धार्मिकता, विश्वास का धार्मिकता ठहराया जाना, धर्मी ठहराए जाने के विषय में जो ज्ञान है वो हमें नहीं पता, या वह जो बात हमारे जीवन में नहीं पूरी हुई है, फिर भी क्या हमारा पवित्रीकरण हो सकता है? Brothers and sisters, no, brother. That does not take place, because it says in Romans chapter 4, verse 17, there are two things which are required. Romans chapter 4, verse 17. For if by the transgression of the one death reigned through the one, much more those who receive the abundance of grace and the gift of righteousness will reign in life through the one Lord Jesus Christ. Brother, Romans chapter 5 verse 17. 5 verse 17, sorry. रोमियो 5 के 17 में, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य अनंत जीवन में राज्य करेंगे। So it is very, very important for us to have that faith in justification, what God has done. Then the grace of God, coupled with the gift of righteousness, will only make us to reign in life. तो जब हम परमेश्वर के जो कार्य, जो उसने बलिदान और जो उपाय हमारे लिए ठहरा, उस पर जब हम विश्वास करते हैं, तब ही परमेश्वर ने जो उसकी धार्मिकता ठहराई है, विश्वास हमारे करने के द्वारा हम उसके भागी होते हैं।